Hello everyone. RN Classes is back again with the video of Unit Test 4 of Class +1 CBSE of Delhi Public School, Chandigarh. So in this video, we are going to discuss each and every question in detail. So starting with the very first question, find the eccentricity of the hyperbola whose equation is given. Now in order to find the eccentricity, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट हैंड साइड पे होना चाहिए 1। तो 6 से जैसे डिवाइड करा वी विल गेट द इक्वेशन x² 2 माइनस y² 3 इक्वल टू 1 एंड वी नो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x² माइनस y² b² इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग a² की वैल्यू आ जाएगी 2, b² की वैल्यू है 3, तो a² एंड b² मिल गए हमें। अब टारगेट था वी हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेशियो ऑफ c बाय a। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहां से, दैट इज a विल बी इक्वल टू √2। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c ढूंढने के लिए वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन a, b एंड c। इन केस ऑफ हाइपरबोला b² इज ऑलवेज इक्वल टू c² माइनस a²। b² की वैल्यू 3, a² की साइड चेंज करेंगे, यहां हो गया ऐड, विल बी इक्वल टू c²। c² नजर आ रहा है 5, तो c की वैल्यू आ गई √5। जैसे ही c एंड a की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला टर्न्स आउट टू बी √5 by √2 and this is the final answer. Now passing on to the question number 2, कहता determine the equation of the circle whose radius is given and center के coordinates भी हमें given है। And we know equation of circle with center h comma k and radius r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 3, तो इट मींस h की जगह आया -2 एंड k की जगह पे हमारे पास है 3। तो h एंड k की वैल्यूज जैसे ही इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे वी विल गेट x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह रखा 3, तो y माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है दैट इज 4, तो ये आ गया 4 स्क्वायर। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ circle। Now question number 3 is find the distance between the points P and Q। Distance between two points हम easily find कर सकते हैं using the distance formula। So PQ distance will be equal to positive square root of x2 minus x1 whole square is -4 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square that is 1 plus 3 whole square and plus z2 minus z1 whole square। And now we can easily simplify this expression। जैसे ही हम simplify करेंगे finally answer turns out to be root of 45 which can be written as 3√5। Now the fourth question is find the equation of the ellipse whose vertices are given and the coordinates of foci are also given। तो जो हमें given है they are coordinates of the vertices and coordinates of the foci। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, अगर आप ध्यान दो vertices and foci के coordinates they are lying on x axis because y coordinate is 0। and one more important observation, इन दोनों foci का that is 5,0 एंड -5,0, अगर आप ध्यान दो इनका मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट इज एट द ओरिजिन। तो इट मींस इक्वेशन ऑफ सच ellipse will be of the form x² by a² plus y² by b² is equals to 1। Very important decision making step। Vertices, foci, they are along x-axis and
फोसाई का जो मिड पॉइंट है, दोनों फोसाई का मिड पॉइंट दैट इज एट ऑरिजिन, मीन्स सेंटर ऑफ द इलिप्स इज एट ऑरिजिन एंड foci and vertices they are along x-axis. That's why major axis is along x-axis. So equation of the ellipse will be of this form. We need to find the values of a and b, and for such an ellipse, coordinates of vertices are plus minus a comma 0. foci के coordinates होते हैं plus minus c comma 0. अगर आप कंपेयर करो vertices और यहाँ के vertices को, तो a की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई 13. फोसाई के कोऑर्डिनेट्स इन जनरल एंड जो गिवन फोसाई के कोऑर्डिनेट्स है कंपेयर करा, सी की वैल्यू आ गई 5. नाउ इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए तो हमें मिल रहा है 13, बी इज मिसिंग. अब बी हम कैसे फाइंड करेंगे? वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन ए, सी एंड बी इन केस ऑफ इलिप्स. बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. जैसे ही सी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट बी स्क्वायर 169 माइनस 25 दैट टर्न्स आउट टू बी 144. तो बी स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह पे रखा 144 इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. पासिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. कहता find the coordinates of the focus, axis of the parabola, the equation of the directrix and the length of the latest rectum of this parabola. अगर आप ध्यान से देखो तो this equation is of the form x square equals to minus 9y. ये जो parabola की equation है, this is of the form x square equals to minus 4ay, and which is a standard parabola which is opening downwards. Vertex is at origin and the axis of such a parabola is y-axis. And for such a kind of parabola, we know the coordinates of focus, they are 0 comma minus a, and और क्या पूछा हमसे? axis of the parabola. Axis of such a parabola is y-axis, and equation of the directrix. Directrix will be something over here, which is y equals to a. Directrix is y is equals to a, and finally हमसे पूछा length of latest rectum. Length of latest rectum. For the hyperbola, that is line segment passing through the focus and perpendicular to the axis whose endpoints lie on parabola is equals to 4a. तो ये सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिल जाएंगे अगर हमें a की वैल्यू मिल जाए. तो मैं क्या करता हूं, इस जनरल इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं गिवन इक्वेशन से. तो जैसे ही कंपेयर करोगे 4a की वैल्यू है 9, तो यहां से a की वैल्यू मिल गई 9/4. तो a की वैल्यू जैसे ही 9/4 यहां प्लेस करेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, दैट इज 0 minus 9/4. एक्सिस इज y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y equals to a की वैल्यू 9/4 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. जैसे ही a की वैल्यू 9/4 रखेंगे, दैट टर्न्स आउट टू बी 9 यूनिट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कहता गिवन दैट p, q and r are collinear, find the ratio in which q divides pr. We are given that the 3 points p, q and r, they are collinear, and also we are given the coordinates of these 3 points 9, 8, minus 10, and we have to find the ratio in which q is dividing pr. So let the ratio be k/1. So using section formula, we can write the coordinates of q using section formula, that is 9k plus 1 into 3 upon k plus 1. Similarly, y coordinate of point q is k into 8, 8k
plus 1 into 2, that is 2 upon k plus 1. Similarly, z coordinate of q point is k into minus 10, that is minus 10k, plus 1 into minus 4, that is minus 4 upon k plus 1. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, बट अगर आप ध्यान दो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपको एक्चुअली गिवन भी थे. तो इट मींस ये जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए x, y and z, they must be same as the coordinates of the given point q, that is 5, 4 and minus 6. On comparing, x coordinate must be equals to the x coordinate of the given point q and y coordinate जो हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करा, that must be same as the y coordinate of the actually given point q, that is 4. And similarly z coordinate जो हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करा, that must be equals to minus 6. We got three conditions involving k. तो जैसे हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 1/2. बट ध्यान से ये k की वैल्यू यहां से दोनों जगह से भी 1/2 आनी चाहिए. और अगर आप वेरीफाई करोगे k की वैल्यू 1/2 रखोगे, सिंप्लीफाई करने पे ये डेफिनेटली आपके पास 4 के बराबर आ जाएगी. सिमिलरली k की वैल्यू 1/2 यहां रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके डेफिनेटली बन जाएगी -6. इसका मतलब k की वैल्यू 1/2 ही है जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. तो इट मींस रेशियो जो आ गई 1/2:1, और बेटर वे में हम लिख देते हैं q डिवाइड्स pr इन द रेशियो 1:2. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ set of points P such that PA square plus PB square equals to 2K square, where A and B are the points whose coordinates are given to us. तो कहता we have to find equation of set of all the points P. अब P point क्या condition satisfy कर रहा है? That PA square plus PB square equals to 2K square. तो we can proceed by assuming the coordinates of point P, क्योंकि point P जो है वो कोई भी arbitrary point हो सकता है. तो let P be x, y, z. So finding PA distance where coordinates of A are 3, 4, 5. So PA distance will be positive square root of x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square and plus z minus 5 whole square. ध्यान से कंडीशन के अकॉर्डिंग वी नीड PA स्क्वायर, तो PA डिस्टेंस आ गया इसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली PB डिस्टेंस का स्क्वायर. PB डिस्टेंस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ P पॉइंट पता है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस PB इज x minus -1, that is x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square and plus z minus 7, that is z plus 7 whole square, and this is equals to 2k square. तो जैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर है ध्यान से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, we will get x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square plus z minus 5 whole square and similarly plus जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे we will get x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square and plus z plus 7 का होल स्क्वायर equals to 2k square. जैसे हम ये स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो फाइनली वी विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन x, y and z and that is the required equation of set of points P जो इस गिवन कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई. तो जैसे ही आप स्क्वायर्स ओपन करोगे यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, z square plus 25 minus 10z plus similarly from here we will get x square plus 1 plus 2x. From this we will get y square plus 9 minus 6y and from there we will get z square plus 49 plus 14z equals to 2k square. Now combining the like terms x square or x square we will get 2x square
Similarly y square, और यहाँ से y square आया तो we will get 2y square, and similarly z square plus z square we will get 2z square. Now minus 6x, and from here we will get 2x, so we will get minus 4x, minus 8y, और यहाँ से आया minus 6y, तो फाइनली बन गया minus 14y, minus 10z plus 14z we will get plus 4z, and combining the constants 9 plus 16 25 plus 25 50 51 and 60 60 plus 49 we will get 109. This is equals to 2k square. So this is the finally equation involving x, y and z, that is our required target. Now question number 8 is find the coordinates of the point which divides the join of A and B in the ratio 2:5 internally. तो सबसे पहले internal point of division find करने के लिए we are given the coordinates of A as 2, -1 and 4, and coordinates of B are 4, 3, 2. C point ऐसा find करना है जो AB को internally divide करता है in the ratio 2:5. So using section formula we can write coordinates of C as 2 into 4 that is 8 plus 5 into 2 that is 10 upon 2 plus 5 that is 7. Similarly y coordinate will be 2 into 3 that is 6 plus 5 into -1 that is -5 upon 2 plus 5 that is 7. Similarly z coordinate will be 2 into 2 that is 4 plus 5 into 4 that is 20 upon 2 plus 5 which is 7. And जैसे हम इसको simplify करेंगे तो coordinates of C turns out to be 18/7. From here we will get 1/7 and from here we will get 24/7. तो ये आ गया point जो AB को internally divide करता है in the ratio 2:5. Now second part is अब हमें ऐसा point find करना है C जो इस line segment AB को एक्सटर्नली डिवाइड करे इन द रेशियो 2:5. अब ध्यान से, अब C पॉइंट कैसा है जो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:5. अब देखो अगर मैं C पॉइंट यहां कहीं लूंगा तो CA डिस्टेंस बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू CB डिस्टेंस, बट हमें रेशियो तो गिवन है 2:5, तो इसका मतलब C पॉइंट का डिस्टेंस A से छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू CB. तो C पॉइंट डेफिनेटली A के इसी साइड पे कहीं लाई करेगा. और वैसे भी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर द स्टूडेंट्स. तो मैं काम करता हूं इसको एक्सटर्नल की बजाय इंटरनली मान लेता हूं और एक काम करता हूं रेशियो कंसीडर कर लूंगा 2:5 और किसी भी एक जगह पे लगा देते हैं नेगेटिव साइन. तो मैंने क्या करा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन को इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रेशियो में एक जगह नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया. अब यहां से हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला है. सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा दे आर -2 into 4 -8 plus 5 into 2 that is 10 by -2 plus 5 that is 3. Similarly y coordinate is -2 into 3 that is -6 plus 5 into -1 that is -5 upon -2 plus 5 that is 3. Z coordinate is -2 into 2 that is -4 plus 5 into 4 that is 20 upon -2 plus 5 that is 3. And जैसे simplify करेंगे we will get 2/3 -11/3 and finally 16/3. तो ये आ गया point C which is dividing AB externally in the ratio 2:5. Now there was choice given in question number 8. So the second option of question number 8 is find the equation of the hyperbola where coordinates of foci are given and the conjugate axis is of length 24. जो given है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं 0, ±13. फोसाई के कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करते हुए एक बात क्लियर हो गई दैट दे आर लाइंग ऑन वाई एक्सिस. फोसाई के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे हैं एंड इन फैक्ट
इन दोनों फोसाई के कोऑर्डिनेट्स कौन से 0,13 एंड 0,-13, इन दोनों पॉइंट्स का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करोगे, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 by 2, that turns out to be 0, y1 plus y2 by 2, that also turns out to be 0. So it means midpoint of these two foci, that is center of the hyperbola, is at origin. So it means equation of the hyperbola will be of the form y square by a square minus x square by b square is equals to 1. Now, in order to write equation of hyperbola, we need to find the values of a and b. a and b find करने के लिए ध्यान से, ये hyperbola है जिसकी transverse axis is along y axis, and we know for such a hyperbola the coordinates of foci in general they are 0, plus minus c. और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन भी हैं, तो अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एज 13. पर मेरे को तो ए और बी फाइंड करने हैं. अगर आप ध्यान दो, एक कंडीशन और गिवन है, द कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 24, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. इन केस ऑफ हाइपरबोला दिस इज इक्वल्स टू 2b. तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमें गिवन है 24, तो यहां से b की वैल्यू मेरे को मिल गई 12. c मिल गया, b मिल गया, b तो मिल गया, बट a अभी भी अननोन है. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a? वी नो रिलेशनशिप बिटवीन c, b एंड a. इन केस ऑफ हाइपरबोला b square will be equals to c square minus a square. So from here we can find the value of a square. b square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 144, c square की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस a square. जैसे इसको सिंप्लीफाई करा तो a square turns out to be 25. a square की वैल्यू 25, b square 144. जैसे ही वैल्यूज यहां प्लेस करेंगे, फाइनली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला turns out to be y square by a square, that is 25, minus x square by b square, which is 144, equals to 1. Now passing on to question number 9, कहता find the equation of the circle which passes through the points 2, -2 and 3, 4, and whose center lies on the line whose equation is given to us. So the situation is that we are given that circle is passing through the 2 points 2, -2 and दूसरा point है 3, 4, and कहता जिसका center है on this line whose equation is given to us. Say this is line x plus y equals to 2. ये हमारे को सारी कंडीशंस गिवन है एंड वी नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ सच अ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए हमें दो क्वांटिटीज पता होनी चाहिए. वन इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेकंड इज रेडियस ऑफ द सर्कल. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लूं h, k एंड रेडियस मान लूं r, तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टर्न्स आउट टू बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो कुल मिला के मेरे को अननोन फाइंड करने कौन से h, k एंड r. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द अननोन्स h, k एंड r. 3 अननोन्स, तो हमें 3 कंडीशंस चाहिए. पहली कंडीशन, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -2, मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो x की जगह पुट करा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 माइनस h होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पुट करा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. एंड जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. यहां से आ जाएगा -2h, यहां से आ जाएगा -4h माइनस, ध्यान से -2 -k तो प्लस 4k, एंड साथ में कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 4 + 4 दैट इज 8 इक्वल्स टू r स्क्वायर. जैसे ही स्क्वायर्स एक्सपैंड करेंगे, वी विल गेट दिस कंडीशन इन्वॉल्विंग h,
K and R. Similarly, circle is also passing through this point, तो ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है, इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पुट कर दिया पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर जैसे ही ये स्क्वायर्स ओपन करेंगे वी विल गेट अनदर इक्वेशन इन्वॉल्विंग h, k एंड r. यहां से आ जाएगा -6h, यहां से आ जाएगा -8k एंड कांस्टेंट 9 प्लस 16 दैट इज 25 विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. अभी अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, h स्क्वायर, k स्क्वायर, r स्क्वायर, ऐसी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, बट इन दोनों इक्वेशंस में h स्क्वायर, k स्क्वायर, r स्क्वायर इनके कोएफिशिएंट्स तो सेम थे, तो जैसे ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट अ नाइस रिलेशन इन्वॉल्विंग h and k. From here we will get 2h and from here we will get 12k and 25 and 8. इन दोनों का डिफरेंस अगर कंसीडर करेंगे we will get -17 equals to 0. h और k में बहुत नाइस रिलेशन मिल गया, इनफैक्ट एक लीनियर रिलेशन मिल गया. अब h और k में अगर मेरे को एक रिलेशन और मिल जाए तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Another relation we can get from here. Center is h, k lying on this line. ध्यान से, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई. तो x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 2. ये देखो एक और नाइस रिलेशन मिल गया h और k में. जैसे ही हम इन दोनों रिलेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ h एंड k. तो यहाँ h का कोएफिशिएंट 1, यहाँ 2, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट 2h प्लस 2k इक्वल्स टू 4 एंड दिस रिलेशन इज 2h प्लस 12k इक्वल्स टू 17. जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2h कैंसिल आउट हुआ, यहां से आ गया -10k इज इक्वल्स टू -13. तो k की वैल्यू आ गई 13/10 एंड इनफैक्ट जैसे ही k की वैल्यू 13/10 इस रिलेशन में पुट करूंगा वी विल गेट h एज 2 - 13/10. एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, h के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 7/10. फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ h एंड k. दो अननोन्स मिल गए, रिमेनिंग अननोन इज r. h और k मिल गए तो h और k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर ऑल्सो. वो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो. h मिल गया, k मिल गया, r स्क्वायर हम इस रिलेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड फाइनली वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल. Again there was a choice given in question number 9. So finally the last question of this unit test 4 is कहता a rod AB of length 15 centimeter rests in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x-axis and end point B lies on y-axis. A point P x comma y is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6 centimeter. To show that the locus of point P is an ellipse. Situation जो हमें given है that is कहता एक rod है of length 15 centimeter which rests in between the two axes in such a way कि उसका जो एक end point A है that always lies on x-axis and दूसरा end point B always lies on y-axis. We are given length of this rod AB is 15 centimeter. And कहता एक point P हमने consider करा इस rod के ऊपर whose coordinates are x, y such that AP length has 6 units की. This AP length is of 6 units. अगर AP 6 units की है, total 15 units है, so you can easily tell length PB that turns out to be 9 units. And finally कहता show that the locus of point P is an ellipse. Locus of point P का मतलब relationship between x and y जो भी आपके पास बनेगा that must be an ellipse. अब relation x और y में लाने के लिए we need one condition.
एंड कंडीशन यहां क्लियरली नजर आ रही है हमारे को। एपी लेंथ 6 है, पीबी लेंथ 9 है, तो इसका मतलब पी जो है पॉइंट दैट इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB in the ratio 6:9. So it means I can write this as, simplify करूंगा तो 2:3 ये बन जाएगी। So P is dividing line segment AB in the ratio 2:3. इस कंडीशन का यूज करना है। जब भी रेशियो इन्वॉल्व हो जाए माइंड में आता है क्यों ना हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लें। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने के लिए ध्यान से, ये पॉइंट बड़ा नाइस है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूं दिस इज अल्फा कॉमा 0। ये बी पॉइंट भी बहुत नाइस है, दिस इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं 0 कॉमा बीटा। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एज 3 into alpha plus 2 into 0 that is 0 upon 3 plus 2 that is 5 comma next y coordinate is 3 into 0 that is 0 plus 2 into beta that is 2 beta by 3 plus 2 that is 5। बट एक्चुअल में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्वेश्चन में गिवन थे, दे आर x, y, तो इट मींस अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 3 अल्फा बाय 5 एंड y मस्ट बी इक्वल्स टू 2 बीटा बाय 5। अब ऐसा क्यों करा, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, लोकस ऑफ पॉइंट P का मतलब वी नीड रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड दैट रिलेशन मस्ट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो मेरे को x और y में रिलेशन चाहिए, I don't need अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा को रिमूव करने के लिए और क्या कंडीशन है जहां से हम अल्फा एंड बीटा को रिमूव कर दें। अरे भाई ये देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रॉड इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो रॉड की लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है मींस AB 15 है, तो आई कैन राइट AB एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square. That turns out to be, after simplification, we will get positive square root of alpha square plus beta square and this is equals to AB rod की length है 15, तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा I will get 225 equals to alpha square plus beta square। अल्फा और बीटा में मेरे को रिलेशन मिल गया, पर मेरे को अल्टीमेट रिलेशन चाहिए x और y में, वो कैसे लाऊं। तो यूजिंग दीज टू कंडीशंस आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 5x by 3 एंड बीटा की वैल्यू मैं इस रिलेशन से लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा वी विल गेट 5y by 2। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जैसे यहां प्लेस करेंगे वी विल गेट 225 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर मींस इस क्वांटिटी का स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर बाय 9 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मींस इसका स्क्वायर 25y स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान से इलिप्स की इक्वेशन हमें पता होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां होना चाहिए 1, जैसे आप 225 से डिवाइड करोगे फाइनली यू विल गेट 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू, ध्यान से ये 25 के टेबल पे कट जाएगा और यहां बच जाएगा 9 एंड प्लस फाइनली यहां भी बचेगा 225 डिवाइड हुआ तो 4 into 9 and this is definitely an equation of ellipse। तो फाइनली हमने शो कर दिया P पॉइंट का जो लोकस होगा that represents an ellipse। And finally discussion of unit test 4 is over। I hope you really enjoyed this discussion। If you want more videos like this, do subscribe the RN Classes channel and like this video and share with your friends also।